Good morning, class. Welcome back. Hope you all are doing well and having a nice day at your home and having healthy food. So, today our topic is the food which helps us to grow and is an important part of our life because it provides us lots of energy and helps in fighting against many diseases. So we'll go through the chapter step by step. So the first one is carbohydrates. They provide us heat and energy to do work. Types of carbohydrates are sugar and starch. Food that contains carbohydrates are rice, wheat, sugar and potato. तो क्या है कार्बोहाइड्रेट्स? ये वो फूड हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी गिविंग फूड. इनके एग्जाम्पल्स हैं राइस, व्हीट, शुगर, पोटैटो. ये नॉर्मली हम हर रोज़ खाने में खाते हैं. दे आर पार्ट ऑफ आवर डाइट एंड दे शुड बी टेकन अप फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड. द नेक्स्ट वन इज फैट्स. Gives more energy than carbohydrates, keeps our body warm. If we overconsume these food items, our body will start gaining weight. Examples are oil, ghee, butter, nuts, etc. तो क्या है फैट्स? जैसे मम्मी बोलती है कि बेटा बहुत सारा घी खाओ, मोटे हो जाओगे. These are those foods that gives us or helps us to gain weight. They have more energy than carbohydrates. It helps our body to be warm. The next point is vitamins. They keep us healthy, helps our body to fight against diseases. We must consume it every day. Examples are vegetables, milk and eggs. Vitamins. हमने काफ़ी बार देखा है कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं विटामिन्स. अगर हम अपनी डाइट में रेगुलर विटामिन्स वैसे ही ऐड कर लें तो वी हैव नो नीड ऑफ टेकिंग मेडिसिन्स. सो फॉर हैविंग अ हेल्दी बॉडी वी शुड डेली have some of these vitamins like vegetables, milks and eggs in our diet. The next point is proteins. They are bodybuilding foods. They are needed to repair the damaged tissue. Examples are pulses, nuts, eggs, fish, meat, cheese and cheese. So क्या है प्रोटीन? प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं. प्रोटीन्स are mainly used by gym people. जो आपके भाई बहन होंगे जो जिम में जाते होंगे वो मेनली अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करते हैं. सो इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग द डैमेज टिश्यू. जब हम एक्सरसाइज करते हैं एंड वी नीड रिपेयरमेंट ऑफ आवर टिश्यू तो वी ईट प्रोटीन. सो प्रोटीन्स आर इंक्लूडेड इन फिश, मीट, एग्स, pulses, nuts, etc. Moving on to the next point, that is minerals. These are the substances that protect our body from illness. They help in the formation of bones, teeth and blood. Fresh fruits, vegetables and milk are example of minerals. तो minerals क्या करते हैं? ये वो substances हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी illness, किसी भी बीमारी से लड़ने में. जैसे कि हमारे फॉर्मेशन ऑफ टीथ है. अब जब हम बचपन में हमारे मिल्क टीथ टूटकर, टेम्पररी टीथ टूटकर परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो ये मिनरल्स ही उनको मदद करते हैं. एंड इवन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, अगर ग्रोथ इवन इन द स्टार्टिंग लेवल बचपन में हमारी बोन्स ग्रो हो रही होती एंड इवन टुडे अगर हम किसी एक्सीडेंट से met हो जाते हैं by chance and we have a broken bone, so these minerals help us in the growth and in the formation of our bones again. So we will discuss the sources of food from plants step by step. The first one is food grain. Food grain क्या mainly हमारी डाइट में क्या होता है, रोटी या फिर चावल.
So the food grains are a part of both of these, that are rice and wheat are the main food crops that are food grains. The another one that are included in food grains are cereals, which are rice, wheat, oats, corn, etc. The next one is pulses, दालें, वो भी हमें प्लांट से ही मिलती हैं. तो what are those? Kidney bean, black gram, dry pea and chickpea, rajma, and many more dals which you see cooking your mother. Spices क्या? नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, and many more things. So they add flavor to the food, but mostly and mainly spices have medicinal values. Example of such spice is turmeric. If we add turmeric to milk and have or consume it every day, we have healthy benefits of this spice. The next source is fruit. Apple, bananas, cherries, oranges, pineapples, strawberries, etc. They are eaten raw. हमें इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती. जैसे भी आ रहे हैं ये घर पर, चाहे एप्पल है, बनाना है, we can eat it. And another way of consuming fruits are in the form of juice. हम इसका जूस भी पी सकते हैं. Vegetables, main part of the meal, rich in vitamins and minerals. Carrot and turnip are roots. Onion and ginger are stems. Spinach is a leafy vegetable. तो क्या देखा हमने? वेजिटेबल्स. हम सबको पता है कि अगर हम रोटी खा रहे हैं, हमारी मेन डाइट में है, तो विदाउट वेजिटेबल वी कांट हैव इट. तो मेनली वेजिटेबल्स आर द मेन पार्ट ऑफ आवर डाइट. उसमें 3 टाइप के वेजिटेबल्स के पार्ट होते हैं, जो है रूट, स्टेम एंड लीफी वेजिटेबल्स. जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं वो हैं कैरेट एंड टर्निप, स्टेम onion and ginger, and the leafy vegetable is spinach, पालक, जो हम खाते हैं, चाहे वो पालक पनीर के रूप में, चाहे कैसे भी. The next one is oil seeds. Oil seeds क्या है? हम खाना पका रहे हैं तो हमें कोई भी ऑयल चाहिए उसे कुक करने के लिए. Every time ghee is not a part of our diet, so we need cooking oil that is brought up from oil seeds. So cooking oil is made from these oil seeds. Moving on to the next part, that is nuts. They are used as snack and add flavor to the food. Almonds, cashew nuts, walnuts and peanuts are part of these nuts. क्या है nuts? ड्राई फ्रूट्स हम जनरली बोलते हैं, जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश, ये सब नट्स के पार्ट्स हैं और दे आर यूज्ड एज स्नैक एट आवर होम. कभी भी नाश्ते की आइटम, थोड़ी बहुत भूख लगी है तो वी कंज्यूम इट. द नेक्स्ट वन इज बेवरेजेस. मेनली दे आर द पार्ट ऑफ आवर पेरेंट्स लाइफ, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी. दे आर मेनली एडिक्टेड टू दैट. Leaves of some plants are used to make drinks. Tea and coffee are popular beverages. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि टी एंड कॉफ़ी आर मेनली द पॉपुलर बेवरेजेस. द नेक्स्ट वन इज फूड फ्रॉम एनिमल्स. We discussed that there are 2 sources of food. One is plant and the another one is animal. So कैसे हमें एनिमल से भी फूड मिल रहा है फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल? The first one is meat. The flesh of animals are used as food. Example are chicken, goat and fish. In animals का chicken, goat and fish का flesh, it is used or taken up as meat. Eggs, we get eggs from hen and duck. दिस इज जनरल कि हमें एग्स कहाँ से मिलते हैं, हैन से या फिर डक से. द नेक्स्ट वन इज मिल्क. मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? बफेलोज,
cow and goat, or generally our parents or our grandparents say that milk has all the nutrients that help our body to grow, and this is the truth कि हमें milk daily consume करना चाहिए for a healthy body. It is used in making products like butter, cheese, ghee, curd and ice cream. So this milk is a part of vegetarian diet other than these meat, eggs, etc. The last one is honey, which also is a vegetarian part. We get honey from honeybees. हमें शहद मधुमक्खियों से ही मिलती है. We know that. So these were the food that we get or we have from animals. So moving on to the next topic, that is how food reaches us. कैसे खाना हम तक पहुंच रहा है, कैसे वो उग रहा है, कौन उसको उगा रहा है और फिर वो हम तक कैसे आ रहा है. We'll learn it step by step. So the first point is farmers plow the field, that is called plowing. क्या करते हैं farmers? Farmers हमारी soil को तैयार करते हैं. तैयार कैसे करते हैं? उसके ऊपर या तो ट्रैक्टर या फिर बाय हैंड using traditional method they plow the field so that the soil is airy enough so that the roots of the crop can survive, they can breathe. जैसे हमें सांस लेने की ज़रूरत होती है वैसे ही क्रॉप्स को भी सांस लेने की ज़रूरत होती है, और वो कैसे करते हैं? थ्रू देयर रूट्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज सोइंग. सोइंग का क्या मतलब? जैसे हमने सॉइल प्रिपेयर कर ली, उसके बाद हमें उस सॉइल में सीड डालनी पड़ेगी. बीज डालते हैं तभी तो कोई भी प्लांट ग्रो होता है. जैसे हमने घर पे भी देखा होगा, इफ़ वी हैव अ गार्डन एंड वी वांट टू ग्रो अ प्लांट, हमें उसमें एक सीड डालनी पड़ती है सो दैट दे कैन अ प्लांट कैन ग्रो. सेम इज द प्रोसीजर विद द क्रॉप. The next point is adding manure and fertilizers. Fertilizers और manures किस लिए यूज होते हैं? हमारी क्रॉप को एक सहारे की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके. क्यों? क्योंकि फार्मर्स फील उनके पास एक छोटी सी लैंड है, वो कितनी बार उस पे क्रॉप उगाते हैं. एक चीज़ का सीज़न गया तो दूसरी क्रॉप ग्रो होगी. तो अगर वो क्रॉप बाय क्रॉप उगाते जाएंगे उस सॉइल पे, तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं. ताकि वो न्यूट्रिएंट्स बने रहे, हम लोग ऐड करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. सो why we add manure and fertilizer? So that the nutrients of the soil are maintained even if the farmer is growing the crop again and again. Moving on to the next process, that is pesticide and insecticide. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. कुछ भी चीज़ है, इवन हमारे घर पे हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम मॉस्किटोज वी यूज mosquito guard, all out and many more things. Same is the case with crop. क्रॉप को किसी भी कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स. नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉप मैच्योर्स विच इज हार्वेस्टिंग. अब हमने सब यूज कर लिया, पानी दे लिया, मैन्योर ऐड कर दिया, पेस्टिसाइड यूज कर लिया, हमारी क्रॉप बड़ी हो गई है. अब वो बड़ी हो गई, वो completely ग्रो हो चुकी है एंड वी नीड टू कट इट आउट. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग. व्हेन द क्रॉप इज फुल्ली मैच्योर एंड इज रेडी टू बी कट एंड टू बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, दिस इज द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग दैट द फार्मर परफॉर्म. द नेक्स्ट पार्ट इज गनी बैग्स. जब हमारी क्रॉप रेडी हो चुकी है तो हम उसको गनी बैग्स में स्टोर कर लेते हैं इन एन एयरी एंड अ कूल एंड ड्राई प्लेस सो दैट द क्रॉप इज गुड इनफ एंड टू बी ईटन बाय द कस्टमर. द नेक्स्ट प्रोसेस इज फ्रॉम गनी बैग्स टू होलसेलर्स. गनी बैग में स्टोर होने के बाद वो सारा सामान होलसेलर्स के पास जाता है. होलसेलर्स कौन होते हैं? जो बल्क में, मतलब इतना सारा सामान इकट्ठा एक साथ ले लेते हैं और फिर वो आगे जो शॉप्स होती हैं छोटी छोटी, उन पर वो सेल करते हैं.
सो होलसेलर्स से फिर वो रिटेलर्स पर जाता है. रिटेलर्स आर द शॉप जहाँ पे हम नॉर्मली जाके कुछ भी खरीदते हैं. एंड देन फ्रॉम रिटेलर्स, दैट इज फ्रॉम शॉपकीपर्स, हम लोग वो परचेज कर लेते हैं. सो दिस वॉज द प्रोसेस, कैसे हम तक फूड पहुंच रहा है. दैट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर. Hope you have learned a lot, and I would recommend that you study hard and complete your copy work as well as book work so that there is no mess after the reopening of school. Thank you.